Good afternoon, everyone. Yes, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so the screen is visible to you all. We have to continue with the same topic, relational model. On the last class that happened on, I think, a week ago, we were doing relational model. ठीक है? क्या होता है relational model? हाँ जी. What is a relational model? Or if I ask you, what is a data model? हाँ जी. Data model क्या होता है? See, data model are always been used for representing how the data will look like in a database. That is, we always talk about the structure of the database. For example, अगर मैं एक logical view देखूं कि अगर we have to construct a house, so for house we have to construct a data model, मतलब कि the model for the house first, मतलब blueprint हमें तैयार करना पड़ता है. उसी वजह से जब हम एक डेटाबेस की बात करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस, तो वी हैव कम अप विद various data models. हमने hierarchical model, network model, we have studied ER model, जिसमें we have studied about entities, how we represent relationship between entities, how we express the entities with the help of attributes. तो हमने एक ER diagram की help से we have seen that how we can logically represent a database. ठीक है? उसी तरीके से relational model क्या है? Relational model is nothing but it is the way through which we are representing a database with the help of rows and columns, or with the help of tables, which is further constructed of rows and columns, right? ये हमने पढ़ा था. We also have done this in our lab part. हमने the implementation of database with SQL, and we have represented our MySQL database. हमारे पास MySQL database है, उसको हम create कर रहे हैं. We are creating a database, we are managing the database, we are asking queries with the help of हमने create command, insert command, update command, alter command, select command. We have studied all these commands, right? Which all are your DDL and DML commands. ये सब पढ़ चुके हैं ना हम? So actually we have seen that what is a relational model is, है ना? सबको पता है relational model क्या होता है? This is, for example, this is a table, right? This is a table and all these are called the columns. Roll number, name, address, phone number, age. इन सबको क्या बुलाते हैं? Columns. ठीक है. अब यहाँ पे ये 1 राम दिल्ली और ये फोन नंबर और 18, ये क्या है? What we call this in relational model? इसको क्या बुलाते हैं? Tuple. Yes, it is called a tuple. है ना? So every table is made up of number of tuples, है ना? और जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स दैट वी आल्सो हैव टू बी कीप दिस इन अ माइंड. तो रिलेशनल कंस्ट्रेंट हमें स्टार्ट करने थे, हमने कुछ स्टार्ट भी किए थे. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट यू ऑल नो व्हाट इज अ एट्रीब्यूट, राइट? यू ऑल नो व्हाट इज अ ट्रिपल एंड व्हाट इज अ रिलेशनल स्कीमा. रिलेशनल स्कीमा क्या है यहाँ पर? Relation schema, basically every database. Schema is synonym to a database. So every database, जैसे स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है, ठीक है, तो उसको हमने लिखा. अगर इसका मुझे रिलेशन स्कीमा लिखना है तो आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक स्टूडेंट. In the round parenthesis, I will write all the attributes which further explain student. So, और एक स्कीमा के एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं. How? Because एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल्स होती है, राइट? और उन टेबल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो उसको हम बुलाते हैं रिलेशनल स्कीमा. ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, ये सब आपको मैंने बताई थी. डिग्री क्या है? व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ रिलेशन?
डिग्री से आप समझते हो द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अ रिलेशन हैज। जैसे ऊपर वाला रिलेशन स्टूडेंट है, उसके कितने एट्रीब्यूट्स है? रोल नंबर, नेम और सिटी एंड देन फोन नंबर एंड एज। तो 5 एट्रीब्यूट है इसके, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5। एंड कार्डिनैलिटी बेसिकली द नंबर ऑफ टपल्स, number of tuples in student is equals to the cardinality of the particular relation. कॉलम आपको सबको पता है। नल वैल्यूज क्या होती है? अगर आप जैसे कोई भी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो एंड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम आपको कोई वैल्यू नहीं पता है, लेट्स सपोज फॉर दिस टपल सुरेश दिल्ली, आपको इसका फोन नंबर नहीं, you can particularly use this value as null. ठीक है? तो null is a feature available with your relational model, जिसके अंदर आप null या empty, अगर आप इसको empty छोड़ रहे हो या null छोड़ रहे हो, it is not applicable. Keep your mic, mute yourself. जी, I was telling you about कि if a value is not known at a particular instance of time, तो उसको आप क्या करते हो? यू कीप इट एज ब्लैंक और यू विल राइट अ नल वैल्यू। ठीक है, तो नल का मतलब क्या होता है? दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट नोन। ठीक है, और अगर नॉट एप्लीकेबल है उसके लिए भी आप नल यूज करते हो। ठीक है, सो लेट्स come to a topic which we called constraint in DBMS. These are the very important constraints जिनको हम relational constraint भी बुलाते हैं. That means all the restrictions that we put up in our database when we create a database. कौन सी restrictions हम put करते हैं? These are being termed as constraint. The very first constraint we called it as domain constraint. हाँ जी, what is the meaning of domain constraint? क्या होता है domain constraint? डोमेन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं इंटीजर डोमेन, तो इंटीजर डोमेन का मतलब क्या है? व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन हैव? हाँ जी, integer value. हाँ, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू दैट मींस it can have negative values, it can have positive values, but it cannot have fractional values. तो इसका जो डोमेन है, जैसे अगर आप जब भी create कमांड यूज करते हो, you use this syntax. कौन सा सिंटेक्स यूज करते हो आप लिखते हो create table followed by the name of the table. Let's suppose the name of the table is student, and then in the round parenthesis आपने उसका name दिया, name का आप type लिख रहे हो, it is varchar. ठीक है, now it can only have alphanumeric data. now अगर आपने दिया age और उसका type दिया int, तो इसका डोमेन क्या है? एज जो एट्रीब्यूट है, इट कैन ओनली हैव इंटीजर डेटा। अगर आप इसके अंदर 5.6 पुट करोगे या अगर आपने इसके अंदर डाल दिया a या b, तो ये कंस्ट्रेंट वायलेशन हो गया। तो सारे कंस्ट्रेंट जब भी आपकी टेबल क्रिएट होती है और कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले कंस्ट्रेंट वेरीफाई किए जाते हैं कि वेदर दिस क्वेरी इज नॉट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट और नॉट। अगर वो कंस्ट्रेंट को वायलेट करती है तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप जब आपने क्रिएट टेबल करी और आपने लेट्स सपोज आपने एक टेबल को क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपके पास दो एट्रीब्यूट है, नेम और एज। नेम में varchar है, एज में int है। नाउ वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज आपने दी, एक है हैरी, देन दूसरा आपने दे दिया ए एज में। तो दिस क्वेरी वोंट बी गेट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले आपके कंस्ट्रेंट वेरीफाई किए जाते हैं कि वेदर दिस क्वेरी is not breaking any constraint. So yes, it is violating a constraint of domain constraint. age का domain है integer और यहाँ पर आप try कर रहे हो value put करना एक character value which is not allowed in this domain of age attribute. तो यहाँ पर ये query क्या होगी? जब भी आप इसको run करोगे you will get a domain constraint violation error. ठीक है, तो domain constraint समझ में आया सबको? What is domain constraint? Yes, ma'am. Now the next one is tuple uniqueness constraint. Tuple uniqueness constraint मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी भी relational table के अंदर no two tuples are allowed to have similar values. It could be possible कि उनका age same है, it could be possible कि उनका नाम same है, but it is not possible कि उनके सारे attributes की value एक ही बारी में same हो। ठीक है, तो that means वो तो duplicate tuple हो गया ना।
तो यहाँ पर एक डोमेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। टपल यूनिकनेस का एग्जाम्पल देखो, अभी हमने टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट पढ़ा कि ऑल द टपल्स मस्ट बी नेसेसरली यूनिक, सारे टपल्स यूनिक होने चाहिए। यहाँ पर देखो, जैसे हमारे पास ये टेबल है, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, एंड ऑल द वैल्यूज आर यूनिक। स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4, all the values are unique, the age could be same, तो इसमें हमारे we have not specified any unique constraint। हम एक unique constraint for particular attribute भी दे सकते हैं, but अभी हम सीखेंगे कि unique constraint को कैसे apply करते हैं। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, जो कि यहाँ पर कोई वायलेट नहीं हो रहा है। दिस टेबल इज adhering to this tuple uniqueness constraint. Now come to the next example. Just look at this example again. Now these two rows, these two tuples are having the similar data. So here we are violating the tuple uniqueness constraint. ठीक है? Now comes to the key constraint. Key constraint क्या कहता है? आपको पता है what is a key? You all know what is a key? Key attribute क्या होता है? What is a key attribute? हाँ जी, who will tell me? Shivam? Shivam Prasad. What is a key attribute? मैम जो एट्रीब्यूट के मैम सारे टपल्स तो यूनिक हो, मैम उससे पूरी सब आइडेंटिफाई कर सके उसको। दोबारा बोलो, क्या बोलो? मैम जिसके मैम सारे मैम जो टपल्स होते हैं यूनिक हो। सारे टपल्स यूनिक हो मतलब? सारे टपल्स मैम यूनिक हो? उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम बाकी बाकी लिस्ट को, वो रिपीट नहीं होंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी। Okay. So basically you are trying to say that a key attribute is the attribute that is having unique value for all the attributes, sorry, for all the tuples. So जैसे आपने roll number है, so roll number is a key attribute which is having a unique value for all the tuples, so that with the help of that particular attribute you can identify any tuple into a relation. Moreover, you can also identify or the remaining values of the particular tuple. जैसे अगर आपके पास बोला कि स्टूडेंट आईडी 001 का नेम क्या है, उसका एज कितना है, उसका कोर्स क्या है, तो यू कैन आइडेंटिफाई द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्टिकुलर की, है ना? तो ये आपका की एट्रीब्यूट होता है। अब जब की कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं, की कंस्ट्रेंट क्या कहता है? की कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन की एट्रीब्यूट, कि अगर आपने बोला कि आपका ये की एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू आपकी नल नहीं होनी चाहिए। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ द की कंस्ट्रेंट, कि अगर कोई आपका की एट्रीब्यूट है दैट मींस इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नल। अगर वो नल होगी तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग टपल्स, राइट? मोरओवर इट शुड बी यूनिक। दो चीजें फॉलो होनी चाहिए, दैट all the values of the primary key should be unique in nature and the value of the primary key cannot be null, must not be null। ठीक है, तो ये आपका की कंस्ट्रेंट कहता है कि जब भी हम एक रिलेशनल मॉडल बनाते हैं तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये देखो आपके पास ये एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, एक आपके पास नेम है और एक एज है। Now in this case स्टूडेंट आईडी को आपने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मींस इट इज योर प्राइमरी की। Now primary key को आप बोल रहे हो it should be unique in nature. Now here how can the two student can have the same student ID? तो यहाँ पर आप इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये अभिषेक कौन है या अक्षय कौन है, because they are having the same similar ID, same ID. So this is not allowed. Moreover यहाँ पर वैल्यू नल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका की कंस्ट्रेंट कहता है that the primary key cannot be null. Moreover it cannot be, it should be unique in nature. This is your key constraint. Now what is entity integrity constraint? Entity integrity constraint is a very important constraint. Domain integrity constraint ये directly पूछ लिए जाते हैं। तो ये यही है जो हमने अभी पढ़ा है कि entity integrity constraint specifies that no attribute of the primary key, ठीक है,
must contain a null value in any relation. जैसे हमने स्टूडेंट आईडी की बात करी, स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की है, दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू इन एनी रिलेशन. अगर आपके पास मल्टीपल रिलेशंस है, ठीक है, और उसमें आपका की एट्रीब्यूट है, किसी भी रिलेशन के अंदर की एट्रीब्यूट की वैल्यू नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, एंड दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नल वैल्यू इन द प्राइमरी की वायलेट्स द यूनिकनेस कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो ये आपका एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है. ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं ऊपर, बट अगेन इसको रिपीट किया गया है. एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की contain a null value in any relation, and if it contains the null value it violates the uniqueness property. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया हुआ है कि here for this particular tuple the value of the student id is not known. Here the student id is playing the role of primary key, and here we are saying that primary key cannot be null. So this is the case which is violating the entity integrity constraint, because अगर ये value null है, आपको नहीं पता ना कि अगर आपको नहीं बोला कि राहुल या स्टूडेंट आईडी जिसकी 004 है या जिसकी स्टूडेंट आईडी है उसकी सारी डिटेल्स दे दो, तो आपके पास राहुल की डिटेल आएगी ही नहीं. तो यहाँ पर इसका ये वाले पूरा टपल अनटच रह जाएगा, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट आईडी से मिलनी है जो कि नहीं है. ठीक है, so this relation does not satisfy the entity integrity constraint because the primary key contains a null value. So similarly आपके पास एक referential integrity constraint आता है. This is also a very important constraint. Referential integrity constraint को समझने से पहले let's understand what is foreign key. क्या होता है foreign key? सबको clear है what is primary key? Yes, ma'am. What is a candidate key? Clear है? यस मैम. क्या होता है candidate key? मैम एक सेट ऑफ कीज होते हैं जिनमें से कि हम एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा जो बच जाते हैं यूनिक वाले वो कैंडिडेट की में आ जाते हैं. ओके, एक मिनट, मैं वो जो फाइल शेयर कर रही थी वो फाइल ही बंद हो गई.
Okay. So we were discussing about candidate की. हाँ, आयुष क्या बोल रहे थे आप candidate की के लिए? मैम सुपर की में से एक तो हम प्राइमरी की ले लेते हैं और बाकी जो बच जाता है वो आपको कैंडिडेट की हो जाता है। उन सारों का यूज हम कर सकते थे यूनिकनेस प्रूव करने के लिए। हाँ, तो कैंडिडेट की को हम एक और डिफाइन करते हैं, एक और डेफिनेशन देते हैं कि कैंडिडेट की ऑलवेज बी अ मिनिमल सेट ऑफ कीज। ठीक है, जैसे आपने बोला कि आपका स्टूडेंट आईडी है और नेम है। स्टूडेंट आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन आपका एक कैंडिडेट की है। ठीक है, या आपने बोला नेम और कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन से आपको बाकी सारे टपल्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और स्टूडेंट और नेम और कोर्स आईडी और कोर्स नेम से भी कर पा रहे हो। तो क्योंकि आप सिर्फ 2 एट्रीब्यूट से कर पा रहे थे, तीसरे एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, बट तीसरा एट्रीब्यूट कुड बी, ये तीनों मिलके कुड बी अ पार्ट ऑफ सुपर की। बट कैंडिडेट की हमेशा मिनिमल सेट ऑफ की होता है। अगर आपने बोला कि स्टूडेंट आईडी से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो स्टूडेंट आईडी कुड बी अलोन अ कैंडिडेट की, बट स्टूडेंट आईडी के कॉम्बिनेशन में आप और एट्रीब्यूट का ज्वाइन करते जाओ तो वो भी सुपर की बनते जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुपर की is again a set of attributes which uniquely identify the remaining attributes of a particular tuple, or they help us to identify other tuples also. तो ये चारों जो की, ये जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की, तीनों ही हमें हेल्प करती हैं एट्रीब्यूट्स को, आपकी टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, प्राइमरी की हमेशा एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है, कैंडिडेट की कुड बी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सुपर की कुड बी ऑलवेज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, बट कैंडिडेट की हमेशा मिनिमल होता है। सुपर की में कितने भी एट्रीब्यूट के सेट बनाते जाओ जो कि हमें आइडेंटिफाई कराएंगे बाकी के बचे हुए एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये बेसिक लेमैन टर्म्स में मैंने बताया। इफ किसी को अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। वी विल बी कैलकुलेटिंग कि कैंडिडेट की क्या होगी, सुपर की क्या होगी, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब ये प्रोसेस समझोगे निकालने वाला, तब आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज एट दिस पर्टिकुलर इनिशियल बिगिनिंग। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की को समझाने के लिए मैंने ये बेसिकली स्टार्ट किया था। फॉरेन की का एग्जांपल मैं पहले भी दे रही थी कि लेट्स सपोज आपके पास 2 टेबल है। ठीक है, एक है आपके पास एम्प्लॉय टेबल एंड एक है आपके पास डिपार्टमेंट टेबल। And in the employee table, there is one attribute which you called as department number. ठीक है, and in your department table, there is one attribute जिसमें आपके पास है, हाँ, एक है डिपार्टमेंट आईडी और एक है डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे ये 2 टेबल को ध्यान से देखो एवरीवन। आई एम टेलिंग यू अबाउट फॉरेन की क्या होती है। ठीक है, so this is the employee table, this is a department table. In the department table, let's suppose department ID is a primary key. ठीक है, and this primary key is referencing the department ID attribute of another table. इसको हम बुलाएंगे referencing table, इसको बुलाएंगे reference table. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे foreign key. This is being called as foreign key because it is being referred by the primary key of another table which we call as department table. So जब ऐसा कोई relation होता है, इसको क्या बुलाते हैं? Foreign key, because this is a key which is being referred by the primary key of another table department. Got सब clear हुआ क्या होता है foreign key? Yes, ma'am. अब फॉरेन की के साथ एक एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है? लेट मी टेल यू फर्स्ट, देन वी विल बी रीडिंग द डेफिनेशन इन डिटेल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। ये क्या कहता है? कहता है कि बहुत बेसिक टर्म्स में मैं बोल रही हूँ कि all the values that this department ID should contain should be belongs to this particular table department. Let's suppose मैंने बहुत, अगर मैं बोलती हूँ कि 005 एक डिपार्टमेंट आईडी है, एक एम्प्लॉय है,
जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 005 है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में 005 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खुद बताओ। Obviously there must be the information present। अगर कोई एम्प्लॉय 005 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नाम की अलग सेपरेट टेबल है, तो उसमें 005 नाम का डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ऑल द वैल्यू दैट दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट शुड होल्ड शुड प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। या तो ये नल हो या इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन हो। किसका माइक ऑन है? म्यूट योरसेल्फ अगर किसी का अनम्यूट किया हुआ है किसी ने। शुभम। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर कोई फॉरेन की है तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है, ऑल द वैल्यू शुड आल्सो प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल, दैट इज इन द रेफरेंस टेबल। इसको हम रेफरेंस टेबल बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं रेफरेंस टेबल। वी कैन नॉट सिंपली इंसर्ट और डिलीट अ वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हमने लेट सपोज मैंने 106 डिपार्टमेंट आईडी कोई एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट किया और इसकी डिपार्टमेंट आईडी डाल दी 106, बट 106 शुड बी प्रेजेंट ओवर हेयर। या अगर मैंने कुछ डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, लेट सपोज मैंने जो मेरी रेफरेंस टेबल है इससे मैंने 106 का डेटा डिलीट कर दिया और 106 का एम्प्लॉय ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। ऑल दीज थिंग्स विल वायलेट माय कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। आई कैन नॉट सिंपली गो फॉर इंसर्शन और डिलीशन जो कि एक दूसरे को अफेक्ट करे। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। नाउ लेट मी रीड आउट द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अच्छा, ये 3 बजे सब टेस्ट के लिए रेडी हो, क्योंकि 2:20 पे तो आपका लेक्चर है। मैंने मैसेज देखा था, जागृति मैम का लेक्चर टेस्ट तो था क्लास आपका। के बीच में ही होता है। क्या कह रहे हो? टेस्ट तो मैम क्लास के टाइमिंग पे ही होता है। क्लास के टाइमिंग पे होता है तो क्लास के 15 मिनट का टेस्ट है, तो आप क्या चाहते हो क्लास के बीच में ले लूं? बोलो, आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट। मैम यस मैम, बच्चे मैम क्योंकि अवेलेबल नहीं होते उस वक्त कुछ, और फिर बाद में बोलते हैं कि क्लास के टाइम में ले लिया करो। अभी तो 31 स्टूडेंट्स है खाली, तो यही बच्चे टेस्ट देंगे। 3 बजे क्या पता इससे कम हो। चलो फिर अभी इसके बाद अगला लेक्चर किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ाता है? नेहा मित्तल मैम। तो एक 4 कितने बजे स्टार्ट होगा? 140 से 220। 140 पे स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तो 130 हो गया है ना। यस मैम। चलो फिर ऐसा करेंगे, कल ले लेंगे। अब क्या, क्योंकि 10 मिनट है, शेयर करने में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में तो नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं। मैम एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना कल के टेस्ट के लिए। हाँ मैं डाल दूंगी। आपका टेस्ट क्लास में होगा, पहले 1 बजे स्टार्ट होगा और इट विल टेक मतलब टोटल टाइम ऑफ 15 मिनट्स। सो 1:15 पे ओवर होके आई विल कंटिन्यू द क्लास एट 1। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे होता है? पूरे एक लेक्चर का टेस्ट ही होता रहता है? यस मैम। क्यों, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? नो मैम, ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो आप खुद बताओ ना, 40 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं खाली। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड वे। 15 मिनट दूंगी, उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। कल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम पढ़ रहे थे। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपके पास 2 टेबल है,
Let's suppose, let me take this example. यहाँ पर देखो, this is your referencing relation and this is your referenced relation. Primary key of this particular relation is referencing a key, referencing an attribute, जिसको हम बुलाते हैं foreign key. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है जिसमें these are the department number 10, 11, 14. All the value that this particular attribute contain should also be present inside the referenced relation. अभी आपका जो डिपार्टमेंट नाम का रेफरेंस रिलेशन है उसमें डिपार्टमेंट नंबर 14 नाम का कोई है ही नहीं, देख रहे हो? सो दिस इज स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट रिलेशन है इज नॉट सेटिस्फाइंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. ठीक है, बिकॉज कोई भी वैल्यू जो इसके अंदर होगी फॉरेन की के अंदर, सारी वैल्यू शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द रेफरेंस्ड रिलेशन. ये क्या कहता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. और दूसरी चीज क्या बोलता है कि वी कैन नॉट सिंपली गो फॉर इंसर्शन और डिलीशन. वी कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ रिकॉर्ड ऑफ द रेफरेंस रिलेशन. जैसे कि आपका रेफरेंस रिलेशन है डिपार्टमेंट आपका रेफरेंस रिलेशन है. अब मैंने कोई रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, जैसे 105 डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट नंबर 14 है या डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसका नाम मैंने रख दिया डिपार्टमेंट नंबर 10A. तो अब मैंने उसकी वैल्यू अपडेट करी. All the updation that I have done, I should also reflect this into my referencing relation. ठीक है, सिंपली मैं अपडेट नहीं कर सकती विदाउट रिफ्लेक्शन. बरोबर, मैं अपने डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड को डिलीट भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड का एम्प्लॉय प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये चीज आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहता है कि आई कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ रिकॉर्ड of the referenced relation if the corresponding record exists in the referencing relation. We cannot insert a record into the referencing relation. Yes, I cannot simply go, कोई employee या कोई student मैंने डाल दिया और उसका डिपार्टमेंट नंबर रख दिया 106, but 106 नाम के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए ना. तो I cannot simply insert a record into the referencing relation. I cannot simply delete or update a record into the referenced relation. ठीक है, ये समझ में आया रेफरेंसिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सबको? हाँ जी आयुष. मैम अगर रेफरेंस्ड वाले से डिलीट कर देंगे तो रेफरेंसिंग वाले में बाय डिफॉल्ट नल नहीं सेट हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट नहीं होता ना नल सेट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रह जाएगी. आपने यहाँ से डिलीट कर दिया D10 का रिकॉर्ड, लेट्स सपोज आपने डिलीट कर दिया, बट D10 से 5 स्टूडेंट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो डैंगलिंग वैल्यू होगी ना. यू कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन. आपने लेट्स सपोज स्टूडेंट में क्वेरी किया कि जो डिपार्टमेंट नंबर D10 के स्टूडेंट है उनके डिपार्टमेंट का नेम और उनकी डिपार्टमेंट उन स्टूडेंट की आईडी आ जाए. That means you are trying to ask a query that is making use of two tables. One is your student and one is your department. And you are interlinking these two tables on the basis of the foreign key, which is department number. अब department number आपने बोला D10, but D10 नाम का डेटा डिपार्टमेंट टेबल में है ही नहीं, तो यहाँ से वो कैसे डिपार्टमेंट नंबर को फेच करेगा? तो यहाँ पर अपने आप नल सेट नहीं होता. यू हैव टू डिलीट स्पेसिफिकली, और यू कैन नॉट सिंपली गो फॉर डिलीशन इन द रेफरेंस रिलेशन. अगर उसमें डेटा ऑलरेडी है, पहले आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा रेफरेंस रिलेशन. क्लियर हुआ? यस मैम. So we have done this thing. The next topic that we have to start in tomorrow's class is relational algebra. थोड़ा सा जल्दी करने की हमें जरूरत वैसे है नहीं, आगे बहुत टाइम मिलेगा. रिलेशनल अलजेब्रा हमने करना है. सबको सिलेबस शेयर हो गया ना? यस मैम. सो ये मॉड्यूल 1 में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिए हैं और रिलेशनल मॉडल्स पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट सब पढ़ लिया है. ठीक है, देन मॉड्यूल 2 कल हम स्टार्ट करेंगे and we will be doing this relational algebra, tuple and domain relational calculus. ये काफी important है. और इसके बाद ये जो है ना MySQL और Oracle, ये सिर्फ शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप लोग अपने आप प्रिपेयर करोगे क्योंकि there is nothing been asked ever in the exam from these topics. बेसिकली आपको ये काइंड ऑफ कमर्शियल डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि
MySQL, Oracle, DB2, SQL Server क्या होते हैं, ठीक है. This is a very important topic, ये वाला relational database design. ये वाला चैप्टर जो है ना, ये आपको पूरा सेपरेट चैप्टर है. डोमेन एंड डेटा डिपेंडेंसी, आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम, नॉर्मल फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म्स, फंक्शनल डिपेंडेंसी. So we'll be spending a lot of time in this topic. ये जो रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काफी टाइम स्पेंड होगा रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में. उसके बाद मेहुल अटेंडेंस ले लिया आपने? मेहुल, okay, so module 3, 4 and 5, 6. मॉड्यूल 6 पे आप सब लोग प्रेजेंटेशन दोगे अपनी, ठीक है. मॉड्यूल 6 इज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स. लॉजिकल डेटाबेस क्या है, वेब डेटाबेसेस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस क्या होते हैं, ठीक है. मैम सेंड कर दी मैंने आपको अटेंडेंस. ओके ओके, थैंक यू. तो हमारे पास कल विल बी स्टार्टिंग विद दिस रिलेशनल अलजेब्रा, और इस रिलेशनल अलजेब्रा से हमारे लैब का पार्ट भी कवर होएगा, ठीक है. ओके देन, कल आपका टेस्ट भी है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, और क्लास